بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران نے نئی پابندیوں کا اعلان رد کر دیا، کہا امریکہ دنیا کی طرف سے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل کا کوئی بدل نہیں، مائک پومپیو نے اطمینان بخش صفائی نہیں دی۔ طیب ایردوان نے کہا امریکہ کی منمانی نہیں چلے گی، دوسرے ملک ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کریں۔ ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش پر 100 سے زیادہ لوگوں کو سخت سزائیں سنائی گئیں، طیب ایردوان کو قتل کرنے کی سازش کا الزام۔ سعودی عرب خاتون کارکنوں کو رہا کرے، انسانی حقوق تنظیموں نے کیا مطالبہ، کہا اصلاحات پر سوال پیدا ہو گئے۔ چھ سال میں پہلی بار دمشق کے تمام ضلعوں پر سیرین پولیس کا کنٹرول، قومی جھنڈے لہرا دیے گئے۔ تمل ناڈو کے ٹوٹی کورین میں کیمیکل پلانٹ کے خلاف احتجاج، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 9 ہلاک۔ کیرالہ میں نپاہ وائرس کی دہشت، مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی، مرکزی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات ایران نیوکلیئر ڈیل کی۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے سخت پابندیوں کے اعلان کو رد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے ریمارکس کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کو ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ان نام نہاد پالیسیوں سے جھوٹ اور الزامات کو دہرایا گیا ہے اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک رکن ملک کے خلاف غیر قانونی دھمکیوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ایسی دھمکیوں اور الزامات کا مقصد دنیا کی توجہ امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزی پر سے ہٹانا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ ایران اور دوسرے آزاد ملکوں کی طرف سے فیصلے نہیں کر سکتا۔ پومپیو کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام ملک اپنے فیصلوں میں آزادی چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ دباؤ کے ذریعے بعض ملکوں میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہو، لیکن عقل و ہوش کے تقاضوں سے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ دنیا کی طرف سے فیصلے کرے۔ ایک دن پہلے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنا پہلا اہم پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے خلاف ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے امریکہ دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی ملکوں کا نام لیا تھا جن میں سعودی عرب، اسرائیل، UAE، قطر، ایجپٹ اور دوسرے ملک شامل ہیں۔ ایران کے سینئر فوجی کمانڈر نے امریکی دھمکیوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام مائک پومپیو کے منہ پر مکہ ماریں گے۔ ریولیوشنری گارڈز کے ایک کمانڈر اسماعیل کوثری نے کہا کہ ایرانی عوام کو ایک ہو کر امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اور ان کی تائید کرنے والوں کے منہ پر زوردار مکہ مارنا چاہیے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے اعلان کے بعد یہ بات کہی۔ موگرینی نے ایک بیان میں کہا کہ سیکریٹری پومپیو کی تقریر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نیوکلیئر ڈیل سے کیوں باہر نکلا گیا اور کس طرح اس سے مڈل ایسٹ کا علاقہ محفوظ ہو سکتا ہے اور کس طرح اس سمجھوتے کے بغیر ایران کی سرگرمیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ امریکہ کا دورہ کریں گے اور نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں مائک پومپیو سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل نے ایران کے تعلق سے امریکہ کی پالیسی کی تائید کی۔ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے کہا کہ باقی دنیا کو بھی امریکہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی صحیح ہے، ایران مڈل ایسٹ میں جارحانہ فکر کو پھیلا رہا ہے۔ UAE کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے کہا کہ امریکہ ایران کے تعلق سے صحیح کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم سب کو مل کر ایران کی دخل اندازیوں اور ایران کے پھیلاؤ کو روکنا چاہیے۔
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की। एर्दोगान ने एक दावत इफ्तार के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि एक मुल्क की हैसियत से हम ईरान न्यूक्लियर डील को यकतरफा तौर पर छोड़ने जैसे मनमानी फैसलों को कबूल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इस समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील के वफादार रहें। उन्होंने उन मुल्कों पर तनकीद की जो न्यूक्लियर हथियार रखते हैं और दुनिया को धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक काम करना है तो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अप्रोच पर अमल करना चाहिए। दुनिया में बड़ी ताकतों का अब कोई एतबार नहीं रहा। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर तनकीद की कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ईरान को सिविलियन मकसदों के लिए भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करना चाहिए। एर्दोगान ने कहा कि मिडल ईस्ट में तमाम न्यूक्लियर हथियार ख़त्म होने चाहिए। उनका इशारा इसराइल की तरफ था, क्योंकि इसराइल ही अकेला मुल्क है जो मिडल ईस्ट में ऐसे हथियार रखता है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि जो मुल्क 15,000 न्यूक्लियर वारहेड्स रखते हैं वो दुनिया को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुल्कों का ऐसा रवैया क्यों है। उन्होंने इसराइल के हाथों फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत की मजम्मत की और कहा कि अमेरिका के हाथ भी इस कत्ल आम के लिए खून से रंगे हुए हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की जून के इलेक्शंस के बाद इसराइल के साथ मौशी ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेगा और इसराइली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का भी फैसला कर सकता है। तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि OIC इसराइली प्रोडक्ट्स के बारे में अपने फैसलों पर अमल करेगी। पिछले दिनों इस्तांबुल में OIC के रुकन मुल्कों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रुकन मुल्कों और दुनिया को उन इलाकों में बने प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए जहाँ इसराइल ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से अमेरिका की सख्त पाबंदियों पर तनकीद की। बोरिस जॉनसन ने G20 वज़ीरों की मीटिंग के मौके पर ब्यूनस आयर्स में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए ईरान न्यूक्लियर डील के इम्कानात बहुत कम हैं। तुर्की की एक अदालत ने 2016 की नाकाम फौजी बगावत के सिलसिले में 104 लोगों को सख्त सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने कई साबिक सिपाहियों को उम्र कैद की सजाएं सुनाई। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इज़मिर सूबे की अदालत ने दस्तूरी निज़ाम को उलटने की नाकाम कोशिश पर यह सजाएं सुनाई। जुलाई 2016 की बगावत के सिलसिले में 280 फौजियों के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं। जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई उनमें साबिक एयरफोर्स चीफ और दूसरे आला फौजी ओहदेदार शामिल है। अदालत ने 21 मुलजमीन को 20 साल जेल की सजाएं सुनाई। उन पर सदर को हलाक करने की कोशिश में मदद का इल्जाम लगाया गया, जबकि 21 लोगों को 7.5 साल से लेकर 10.5 साल के दरमियान सजाएं सुनाई गईं। कहा गया कि उस बगावत के दौरान सदर तैयब एर्दोगान को हलाक करने की कोशिश की गई, जो उस वक्त तुर्की के एक तफरीही मकाम मरमरीस में अपने घर वालों के साथ छुट्टी मना रहे थे। उस बगावत की कोशिश के दौरान 240 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनमें बगावत के जिम्मेदार शामिल नहीं हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। तुर्की ने इस बगावत के लिए एर्दोगान के साबिक साथी फतेहुल्लाह गुलन को जिम्मेदार ठहराया, जो अमरीका के पेंसिल्वानिया में रहते हैं। तुर्क ओहदेदारों का इल्जाम है कि गुलन एक दहशतगर्द नेटवर्क चला रहे हैं जो मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम चला रहा है और अपने एक अलग एजेंडे पर अमल कर रहा है, लेकिन गुलन ने ऐसे इल्जामात को कबूल करने से इनकार कर दिया। मगरबी मुल्कों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कई बार बगावत के बाद सख्त क्रैकडाउन पर तनकीद की और इमरजेंसी हटाने का मुतालबा किया। इस बगावत के बाद हज़ारों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और गिरफ्तार किया गया, जिन पर ज़रा बराबर भी शुबा था कि वो गुलन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ऐसे वक्त जब एक महीने से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गायब रहने की वजह से उलझन पाई जाती है और हालात पर नजर रखने वालों के जहनों में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, शाही खानदान के एक रुकन ने जो जर्मनी में रहते हैं बाज़ शहजादों से टेलीफोन पर बातचीत की और शाह सलमान को हटाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिडल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि जर्मनी में पनाह हासिल करने वाले प्रिंस खालिद बिन फरहान ने प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और प्रिंस मुकरिन बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों शहजादों से कहा कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए शाही खानदान के दूसरे अरकान को भी कायल करें और फौज को भी साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में तब्दीली लाई जा सके। प्रिंस खालिद बिन फरहान ने कहा कि शाह सलमान की गैर वाजबी और अहमकाना हुकूमत को ख़त्म करना और मुल्क को बचाना ज़रूरी है। प्रिंस खालिद बिन फरहान ने कहा कि पिछले दिनों शाही खानदान के अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से शाही खानदान में नाराज़गियाँ बहुत बढ़ गई हैं और शाही खानदान के अरकान का एहसास है कि उनकी बेइज्जती की गई है। इस ताल्लुक़ से शाही खानदान में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने निशानदेही की कि अब भी क्रैकडाउन का शिकार शाही खानदान के अरकान पर कई पाबंदियाँ लगी हुई हैं। प्रिंस खालिद बिन फरहान ने मोहम्मद बिन सलमान के काम करने के तरीके पर तनकीद की और कहा कि वो स्कूलों के दिनों से ही नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे और अगर हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में रही तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो यूरोप के मुल्कों को खबरदार करना चाहते हैं कि सऊदी अरब की सूरत हाल एक लावे की तरह है और अगर ये लावा फट पड़ा तो अरब का पूरा इलाका और आप भी मुतासिर होंगे।
इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि उन खातून कारकुनों को रिहा किया जाए जिन्हें जुमे के दिन गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी हटाने और औरतों के लिए दूसरे हकूक़ का मुतालबा करने वाले इन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कौमी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिसर्चर रोहिना बेगम ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इन गिरफ्तारियों का ताल्लुक 24 जून को औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी हटाने के मामले से है। इन गिरफ्तारियों से सऊदी अरब में उन रिफॉर्म्स के ताल्लुक से शक व शुबहात पैदा हो गए हैं जिनका वादा किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन गिरफ्तारियों पर तनकीद की और इन औरतों पर गद्दारी और गैर मुल्की ताकतों से ताल्लुक रखने के संगीन इल्जामात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। ड्राइविंग की पाबंदी का कानून तोड़ने वाली एक खातून मनाल शरीफ ने कहा कि इन खातून कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये नाराज आवाज़ों को दबाने की एक चाल है जिससे हमें चौकस रहना चाहिए। मनाल ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया तो मैं कहूँगी कि ये उन खातून कारकुनों के लिए एक पैगाम है जो मुहिम चलाती रही हैं और उनसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है। मनाल अब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहती है। मनाल ने कहा कि ये गिरफ्तारियां बहुत मायूस कुन बात है। दमिश्क के तमाम जिलों में कई साल में पहली बार सीरियन पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सरकारी फौज ने आईसिस के कंट्रोल वाले बचे कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। सरकारी फौज ने यरमुक रेफ्यूजी कैंप और आसपास के इलाकों में अपने कंट्रोल को बहाल कर लिया। 2012 के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब दमिश्क के तमाम जिलों पर सरकारी फौज और पुलिस का कंट्रोल कायम हुआ है। मंगल के दिन सीरियन पुलिस की यूनिट यरमुक और हजर अल अस्वद जिलों में दाखिल हुई और वहां पर सीरिया के सरकारी झंडे लहरा दिए। पुलिस ने सरकारी इमारतों पर सदर बशर अल असद और उनके वालिद हाफिज अल असद की तस्वीरें भी लगाई। इस मौके पर पुलिस को जश्न मनाते हुए दिखाया गया। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हाल ही में हुदैदा बंदरगाह के करीब तुर्की का एक जहाज मिसाइल हमले की जद में आ गया। अल मालिकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस हमले के लिए यमन के अल हुसी जिम्मेदार हैं। अल मालिकी ने कहा कि अल हुसी इंसानी इमदाद के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे पाकिस्तान के कराची शहर में गर्मी की वजह से 3 दिन में 65 लोगों की मौत हुई और दिल्ली के आर्च बिशप ने कैथोलिक ईसाइयों से कहा कि वो हिंदुस्तान के खराब हालात को सुधारने के लिए खुसूसी दुआएं करें और रोजे रखें, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने नई पाबंदियों का ऐलान रद्द कर दिया। कहा अमेरिका दुनिया की तरफ से फैसले नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील का कोई बदल नहीं। माइक पॉम्पियो ने इत्मीनान बख्श सफाई नहीं दी। तैयब एर्दोगान ने कहा अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, दूसरे मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करें। तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश पर 100 से ज्यादा लोगों को सख्त सजाएं सुनाई गईं। तैयब एर्दोगान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। सऊदी अरब खातून कारकुनों को रिहा करे। इंसानी हकूक तंजीमों ने किया मुतालबा। कहा इस्लाहात पर सवाल पैदा हो गए। छह साल में पहली बार दमिश्क के तमाम जिलों पर सीरियन पुलिस का कंट्रोल। कौमी झंडे लहरा दिए गए। तमिलनाडु के टूटिकोरिन में केमिकल प्लांट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 9 हलाक।
केरला में निपा वायरस की दहशत, मरने वालों की तादाद 10 हो गई, मरकजी टीमें पहुंच गई। जायरत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को फलस्तीनी इंसाफ की आलमी अदालत से कहा है कि वो फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की गैर कानूनी सरगर्मियों और कार्रवाइयों से निमटने के लिए और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए छानबीन शुरू करे। फलस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मालिकी ने हेग की अदालत में यह दरख्वास्त दाखिल की। इसराइल ने 1967 के बाद से मुसलसल अल-कुद्स और मगरबी किनारे में अपनी कई नाजायज़ बस्तियाँ बसाई हैं। फलस्तीन ने अल-कुद्स से यरूशलेम में सफारत खाना खोलने पर पैराग्वे पर तनकीद की और दुनिया से कहा कि वो उन मुल्कों का बॉयकॉट करें जो इस हवाले से अमेरिका की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। फलस्तीन की वजारत खारजा ने पैराग्वे के सफारत खाने को गैर कानूनी, फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारहियत और अमेरिका और इसराइल के इशारों और रिश्वत के आगे झुकने के बराबर करार दिया। इसराइली फौज के अहदेदार ने कहा है कि इसराइल अमेरिका में बने F-35 फाइटर जहाज़ों का इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने इशारा दिया कि मिडल ईस्ट में 2 मरतबा इसराइल ने इन खतरनाक जंगी हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। इसराइली एयरफोर्स के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम मिडल ईस्ट में F-35 फाइटर जहाज़ उड़ा रहे हैं, हमने 2 मरतबा महाजों पर इनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने तस्वीरें भी जारी की कि ये जहाज़ लबनान के आसमान पर उड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में तालिबान ने कई हमले करते हुए पुलिस को निशाना बनाया। इन हमलों में एक जिला पुलिस चीफ और एक रिजर्व यूनिट के कमांडर भी हलाक हुए। जुमला 14 पुलिस वालों के हलाक होने की खबर है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले ना करने का ऐलान किया था। ये हमले पीर की रात गजनी सूबे के अलग अलग मकामात पर किए गए, जिनमें सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। कई ऑफिसर्स के जख्मी होने की भी खबर है। इस दौरान अफगानिस्तान के कंधार से भी एक हमले की खबर मिली है, जिसमें मरने वालों की तादाद 16 बताई गई है। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस अहदेदारों ने बताया कि एक मिनी बस को बम से निशाना बनाया गया। ये वाकया शहर के एक बाजार के करीब पेश आया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक से एंटी करप्शन अहदेदारों ने करप्शन के केस के सिलसिले में पूछताछ की। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में नजीब रज़ाक को शिकस्त हो गई थी। मलेशिया के एंटी करप्शन कमीशन ने उन्हें तलब किया और उनसे $10.5 मिलियन के फंड्स के उलटफेर के सिलसिले में पूछताछ की गई। साउथ कोरिया के सदर मून जाइन ने अमेरिका पहुंचते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले महीने ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान छोटी मुलाकात पर गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात मुकर्रर थी, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्या ये मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि मून जाइन और डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बातचीत की। कोरिया के इलाके में खुशगवार माहौल पैदा हो गया था, लेकिन उस वक्त बदमज़गी पैदा हो गई जब अमेरिका और साउथ कोरिया ने अपनी सालाना मशक़ें शुरू की, जिससे नॉर्थ कोरिया नाराज हो गया। पाकिस्तान में इन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कराची शहर में पिछले 3 दिनों में गर्मी की वजह से 65 लोगों की मौत हो गई। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में गर्मी से मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान में रमजान इस साल सख्त गर्मी के मौसम में आया है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान मजहब या जात पात की बुनियाद पर कोई फर्क करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो दिल्ली के आर्च बिशप के एक सर्कुलर का जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि मुल्क में सेक्युलर उसूलों और जमहूरियत को खतरा पैदा हो गया है। आर्च बिशप ने कैथोलिक ईसाइयों से कहा कि वो अगले साल के इलेक्शन से पहले मुल्क में रूहानी तजदीद के लिए दुआएं करें और रोजे रखें। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज महफूज हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने आर्च बिशप का सर्कुलर नहीं देखा, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को भी जात पात या मजहब की बुनियाद पर फर्क करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मजहब और जात पात की बेड़ियां तोड़ रहे हैं और उनकी हुकूमत सबकी तरक्की के लिए काम कर रही है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर आर्च बिशप ने कहा कि हम सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं कि कौम सही समत में जाए। उन्होंने कहा कि हम तमाम चर्चों और इदारों में दुआ करेंगे और रोजे रखेंगे। हमें हमारे मुल्क में होने वाले वाक़यात को नज़र में रखना चाहिए। हर हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम और दस्तूर की हिफाजत करे। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरे दिन लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की, जिससे मंगल को 7 सिविलियन जख्मी हो गए। बताया गया कि पाकिस्तान के रेंजर्स ने पीर की रात से आरएसपुरा, अरनिया और हीरानगर सेक्टर्स में शलबारी की, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पाकिस्तानी शलबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अखनूर से लेकर कठवा तक कई अहम सेक्टर्स में फायरिंग का तबादला हुआ। एक दिन पहले पाकिस्तान की फायरिंग में एक दूध पीता बच्चा हलाक हो गया था और 6 सिविलियन जख्मी हुए थे। इस दौरान पाकिस्तानी फायरिंग में मरने वाले बच्चे के बाप ने जज्बाती अंदाज में सवाल किया कि उनके 8 महीने के बच्चे ने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा था।
तमिलनाडु के टूटिकोरिन में एक स्टेरलाइट प्लांट को बंद करने का मुतालबा करने वाले एहतजाजियों के मुजाहरे के दौरान गड़बड़ में कम से कम 9 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। मकामी अवाम पॉल्यूशन की वजह से इस प्लांट को बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। इस वेदांता स्टेरलाइट प्लांट के बारे में कई दिनों से तनाज़ा चल रहा था। कई महीनों से इस प्लांट के खिलाफ एहतजाज जोरों शोर से जारी था, जिसने मंगल को तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। पुलिस के साथ एहतजाजियों की झड़पें हुई। हुजूम को काबू में करने की कोशिश में पुलिस ने फायरिंग कर दी। एहतजाजियों ने, जिनमें औरतें भी शामिल थी, पथराव किया और सरकारी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी। ये मकाम टूटिकोरिन चेन्नई से कोई 600 किलोमीटर दूर है। एहतजाजी एक चर्च के करीब जमा हुए और ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट किया। बाज़ दूसरे मकामात से भी लोग वहां पर जमा हुए। हालांकि 144 सेक्शन लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 5000 एहतजाजी चर्च के करीब जमा हुए और जिला कलेक्टर के दफ्तर तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई। 200 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आसपास के इलाकों से इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। जिले में कई तंजीमें इस प्लांट के खिलाफ आवाज उठा रही थी। एहतजाजियों का कहना है कि इस प्लांट से उनके इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी या अंडरग्राउंड वाटर आलूदा या पोल्यूटेड हो रहा था। बताया गया कि एक 16 साल की लड़की भी मरने वालों में शामिल है। मुल्क की केरला रियासत और आसपास के इलाकों में निपा वायरस की वजह से दहशत देखी जा रही। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है और 2 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया कि 12 लोग इस वायरस के लिए पॉजिटिव। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने नई पाबंदियों का ऐलान रद्द कर दिया। कहा, अमेरिका दुनिया की तरफ से फैसले नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर डील का कोई बदल नहीं। माइक पॉम्पियो ने इत्मीनान बख्श सफाई नहीं दी। तैयब एर्दोगान ने कहा, अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। दूसरे मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करें। तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश पर 100 से ज्यादा लोगों को सख्त सजाएं सुनाई गईं। तैयब एर्दोगान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। सऊदी अरब खातून कारकुनों को रिहा करे। इंसानी हकूक तंजीमों ने किया मुतालबा। कहा, इस्लाहात पर सवाल पैदा हो गए। छह साल में पहली बार दमिश्क के तमाम जिलों पर सीरियन पुलिस का कंट्रोल। कौमी झंडे लहरा दिए गए। तमिलनाडु के टूटिकोरिन में केमिकल प्लांट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 9 हलाक। केरला में निपा वायरस की दहशत। मरने वालों की तादाद 10 हो गई। मरकजी टीमें पहुंच गई। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।